Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Vardhman Mahavir was born at Kundagrama near Vaishali in Bihar somewhere around 599 BC. At the age of 42, he acquired the true knowledge or Keval Gyan and began to be known as Mahavir or Jin, and his followers came to be known as Jains. In 527 BCE, when he was 72 years of age, he attained nirvana at Pava or Pavapuri near Rajgriha in Bihar. After the death of Mahavir, Jainism was divided into two sects, and this marked the decline of Jainism. Gautam Buddha was contemporary of Lord Mahavir and was born in 567 BCE in the village of Lumbini near Kapilvastu, situated in foothills of Nepal. He was the son of Shuddhodhan, the Kshatriya chief of the Republican Sakya clan of Kapilvastu. The true light dawned on him and he became Buddha or the Enlightened One when he was 35 years of age. He attained nirvana at Kushinagar in Uttar Pradesh in 486 BCE at the age of 80. The strong revival of Hinduism established supremacy of the Vedic religion over Buddhism and led to its decline in India. Buddhism began in India approximately 2500 years ago. The founder of Buddhism was Gautam Buddha, who was born around 566 BCE in Lumbini near Kapilvastu, the border of present-day Nepal. So, in this paragraph, we will come to know about Buddha, Gautam Buddha. He was a prince and he born in 566 BCE in Lumbini. It is near present-day Nepal, and he was a prince of kingdom Kapilvastu, and the king was Shuddhodhan. Okay. So, Siddhartha, as he was known before he became Buddha or the Enlightened One. So, before becoming a Buddha, his name was Siddhartha. उसका नाम सिद्धार्थ था. Belonged to साक्या क्लैन, यानी क्लैन मतलब वंश. साक्या नाम के वंश का वो राजकुमार था. His father was King Shuddhodhan, the ruler of Kapilvastu, और वो कपिलवस्तु के राजा थे जिसका नाम था शुद्धोधन. And his mother was Queen Maya. उसकी माता का नाम माया था. When Prince Siddhartha was young, he saw foresight that changed his life. So during his life, he saw four things, and due to that, his life changed. उसकी लाइफ में बदलाव आ गया. तो कौन सी वो चार चीज़ें देखी जिससे उसकी लाइफ में बदलाव आ गया? The first sight was that of a sick man crying in pain. एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से रो रहा था. The second was of an old man and the third of a dead man. इस तरह से दूसरी बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, और तीसरा जो उसने
साइट यानी कि नज़ारा देखा, वो एक डेड मरे हुए इंसान को देखा। इस तरह से these three sights made him sad and he found that he could never enjoy the pleasure of the palace while the people of his kingdom suffered। और उन्होंने सोचा, देखा उन्होंने कि मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा जब तक मेरे राज्य में लोग हैं इस तरह से तकलीफ़ में हैं, सफ़र कर रहे हैं, दुख में हैं। The fourth sight was that of an ascetic who was renowned the world and was meditating under a tree। और उसने चौथा दृश्य देखा वो एक एसेटिक यानी कि एक तपस्वी जिसने है अपने घर को छोड़ दिया था और मोक्ष के लिए मेडिटेटिंग कर रहा था यानी कि तपस्या कर रहा था अंडर ए ट्री। सीइंग द एसेटिक द प्रिंस डिसाइड टू लीव द पैलेस एंड वंडर अराउंड लाइक ए मॉन्क। और उनको जब देखा वो तपस्वी को, तो उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया, पैलेस को छोड़ दिया और मॉन्क यानी कि साधु की तरह वे घूमने लगे। ट्राइंग टू फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो इस संसार के दुख को या इस संसार के दुख में से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उसका वो रास्ता ढूंढने लगे और वो घूमने लगे। प्रिंस सिद्धार्थ then wandered from place to place for 6 years in search of truth। और इस तरह से वे घूमते घूमते 6 साल तक घूमे। He finally achieved enlightenment while meditating under a peepal tree in Bodh Gaya in बिहार। और उन्होंने फाइनली यानी आखिर में एनलाइटमेंट यानी कि उनको ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। कौन सी जगह पर? बोध गया, जो बिहार में है, बोध गया। वहाँ पे वो बैठे थे और तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें परम ज्ञान हुआ। और इस तरह से उन्होंने जो है संसार के दुखों को में से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उसका उन्होंने सच जान लिया। एंड केम टू नो एंड अबाउट द ट्रूथ एंड आफ्टरवर्ड केम टू बी नोन एज बुद्धा द एनलाइटेड वन। और इस तरह से उनका नाम बुद्धा हो गया और बुद्धा के नाम से जाने गए। बुद्धा मतलब जिन्हें एनलाइटमेंट हो गया है, जिन्हें परम ज्ञान हो गया है, ऐसे व्यक्ति को हम बुद्धा कहते हैं। और तब से वे बुद्धा कहलाने लगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धा द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग caused by human desire। और उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने बताया कि हमारे जो दुख है, हमारे जो दर्द है, उसका कारण एक ही है कि हम बहुत इच्छाएं रखते हैं। हमारी इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। उन्होंने ये भी कहा कि रेनेंसियंस ऑफ डिज़ायर is the path for attaining salvation। Renunciation मतलब त्याग, to leave all the desire। हमें हमारी इच्छाएं छोड़ देंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे और हम जो है मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सैल्वेशन मतलब हमें मोक्ष मिलेगा, जन्म और मरण के चक्र में से हम छूट पाएंगे। अगर हम इच्छाएं रखते ही रहेंगे
तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार हमारी मृत्यु होगी दुख के कारण। दुख होगा और फिर हम मर जाएंगे, फिर वापस इच्छाएं अधूरी हो जाएगी, रह जाएगी, तो हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से जब तक हम इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक है हमें कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। Salvation, according to Buddha, can be achieved by following the eightfold path. और उनके हिसाब से उन्होंने 8 रास्ते बताए जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। This eightfold path, as preached by Buddha, included. और इस तरह से उन्होंने 8 रास्ते या 8 जो है तरीके बताए जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और वे थे राइट एक्शन, हम जो भी करें सही करें। राइट डिटर्मिनेशन, यानी हम जो भी सोचे वो सही सोचे, दृढ़ संकल्प के साथ सोचे कि नहीं हमें ये करना ही है। अगर हमारा सच्चा इरादा होगा तो ही हम सच्चा काम कर पाएंगे, राइट एक्शन कर पाएंगे। राइट एक्सरसाइज, जो हमें काम करना है वो एक बार में नहीं होता है, तो हमें वो काम के लिए प्रयत्न और बार बार जो कोशिश करनी पड़ेगी, उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसे बार बार करने से वो काम हम ज़रूर कर पाएंगे। राइट लाइवलीहुड, हमारा जीवन है उस जीने का तरीका सही होना चाहिए, सही तरीके से हमें जीना चाहिए। राइट मेडिटेशन, हमें भगवान को करने के लिए या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ध्यान तपस्या बहुत ज़रूरी है। राइट मेमोरी, और इस तरह से हमें जो है स्मरण शक्ति से, भगवान के स्मरण शक्ति से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। राइट ऑब्जर्वेशन, सही देखो, गलत को ना देखो। एंड राइट स्पीच, और सही बोलो, सही देखो, और हमारी स्मरण शक्ति है वो सही होनी चाहिए। भगवान के ध्यान होना चाहिए, हमारे जीवन में भगवान का ध्यान हमेशा होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करें भगवान को साक्षी मान के, भगवान है ये मान के हमें कार्य करना चाहिए। हमें कोई नहीं देख रहा है, इस तरह से हम कभी कभी गलत करते हैं, वो होना नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरह से उन्होंने ये 8 पाथ बताए। लाइक महावीरा, बुद्धा ऑल्सो प्रोपगेटेड द थियोरी ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस। और जिस तरह से महावीरा ने अहिंसा के बात के ऊपर जोर दिया, इसी तरह से बुद्धा ने भी नॉन वायलेंस के ऊपर ही जो है जोर दिया। द स्प्रेड एंड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म was taught in Prakrit, which is the language of an ordinary people, so that everyone could understand the message of the Buddha. The disciple of Buddha formed Sangha or association and traveled from place to place to propagate Buddhism. As a result, many tradesmen and craftsmen become followers of this religion. Apart from India, Buddhism spread to many countries of Central Asia. In fact, Buddhism continued to be a popular religion in Japan, Korea, Thailand, and China. Buddhism became an important aspect of the Chinese life. Many scholars went to China, and Chinese monks came to India to learn Buddhism. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये बताया है कि बुद्ध भगवान के द्वारा बनाया गया बुद्धिज़्म
किस तरह से अलग अलग देशों में स्प्रेड आउट हुआ। तो ये बुद्धिज़्म का जो नॉलेज है वो प्राकृत भाषा में समझाया जाता था, जो लोगों की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके, उसके मैसेज को वो समझ सके। तो इस तरह से उनके जो डिसिपल्स थे, यानी कि उनके जो शिष्य थे, उन्होंने संघ बनाए। संघ यानी एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपल, और वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट करने के लिए, यानी कि धर्म को फैलाने के लिए। और इस तरह से वो आगे आगे एक देश से दूसरे देश जाते थे, और धीरे धीरे उसमें लोग हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, वो बढ़ते गए। और उसी में ट्रेडमैन, क्राफ्टमैन भी इनको फॉलो करने लगे। व्यापारी लोग जो कारीगरी करते थे, धीरे धीरे बहुत सारे लोग इस धर्म में जुड़ने लगे। तो इस मैप से आपको देखने को मिलेगा कि एशिया के कई देशों में जो है बौद्ध धर्म फैला। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में सबसे पहले जो है ये बौद्ध गया, यानी जो बिहार में है, वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, बराबर। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं एरो से कि यहाँ पे फैला इंडिया के नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। साउथ में भी आप देख सकते हो। फिर इंडिया के बाद श्रीलंका में, ओके। उसके बाद जो है बर्मा, बर्मा के बाद जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पे आपको थाईलैंड और मॉरिशस भी है वहाँ पे। तो वहाँ पर भी जो है बौद्ध धर्म है। उसके बाद चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, और उसके बाद एकदम ईस्ट में अगर हम देखें तो कोरिया, जापान, ओके। प्लस साउथ ईस्ट एशिया के अलावा कई ऐसे आइलैंड्स, जावा है, सुमात्रा है, बोरियो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है बौद्ध धर्म सबसे पहले जो है बोध गया में जो है स्टार्ट होकर किस तरह से है एशिया के ज़्यादा से ज़्यादा भाग में वो